बता दें, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज संसद में पेश होनी है और ये लगभग तय दिखाई दे रहा है क्योंकि बीजेपी ने व्हिप जारी किया है और बीजेपी के सांसदों की लोकसभा की सदस्यता के उस आंकड़े को आप देखें तो आप ये मानकर ही चलेंगे कि महुआ मोइत्रा की सांसद सदस्यता रद्द होनी यहाँ से तय नजर आ रही है। हंगामे की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सभापति महोदय, with your permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 11th of December 2023 will consist of consideration of any item of the government business carried over. Today's order paper, it contains the discussion and voting of the first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 and introduction, consideration, passing of the appropriation number 3 bill 2023. Item number 9, Shri K. Muralidharan ji. Sir, I rise to lay on the table a copy each of 361, 362 and 363 reports of the department related parliamentary standing committee on transport, tourism and culture. And serial number 9 today order paper. कृपया बैठ जाइए। अभी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, केवल सदन के पटल पर प्रस्तुत हुई है, उस पर निर्णय सदन करेगा। Chairperson sir, with your permission, Please listen. Honorable Minister is reading I rise to announce that the government business during the week commencing Monday, the 11th of December 2023 will consist of consideration of any item of the government business carried over from the today's order paper. It contains discussion and voting on first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 and introduction, consideration and passing of the appropriation number 3 bill 2023, discussion and voting of on the demands for excess grants for the year 2021 and introduction, consideration and passing of the related appropriation number 4 bill 2023 and third, consideration and passing of the post office bill 2023. Consideration and passing of the following bills. Number 1, Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Number 2, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. Number 3, Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. Number 4, the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023. And 5th, the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2023. Next, consideration and passing of the press and registration of the periodical bill 2023 as passed by the Rajya Sabha. Number 4, the consideration and passing of the following bills after their introduction. Number 1, the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023 and the Provisional Collection of Taxes Bill 2023. Next, the consideration and passing of the Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment, condition of service and term of office bill 2023 after it is passed by the Rajya Sabha. Thank you. Please sit down. अभी सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपने देखा विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया, उन्होंने नारे लगाए तानाशाही नहीं चलेगी। महुआ केस में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर ही लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों के नारे आपने सुने, तानाशाही नहीं चलेगी और केवल अभी रिपोर्ट पेश हुई है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए आधे घंटे का वक्त भी रखा गया है। लेकिन इससे पहले कि कोई चर्चा हो, इस पर कोई निष्कर्ष निकले, उससे पहले ही विपक्षी सांसदों की ओर से तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके से नारेबाजी होनी शुरू हो गई और इसी हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित हुई। 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़े हुए हमारे साथ। अभी तो केवल रिपोर्ट पेश हुई, अभी तो चर्चा भी शुरू नहीं हुई, उससे पहले ही विपक्ष का यह हंगामा शुरू हो गया।
यही तो वो नकारात्मक राजनीति है जिसकी तरफ इशारा बीजेपी के सांसद करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इस नकारात्मक राजनीति को छोड़ना होगा, चर्चा तो करते पहले। ये कमेटी की रिपोर्ट के दरमियान, कमेटी जब रिपोर्ट बना रही थी, तैयार कर रही थी, उस दरमियान जब महुआ मोइत्रा की पेशी हो रही थी तब भी ऐसा ही नज़ारा था। फिर कमेटी की जब रिपोर्ट आई तो उस समय भी 6 सांसदों ने पक्ष में कहा, उनमें से बाकी 4 सांसदों ने, अपोजिशन वालों ने असहमति दी। तब भी बहुत हंगामा हुआ, महाभारत का जिक्र किया गया, दानिश अली का आपको वो बयान याद होगा। उसके बाद आज जब सदन में पेश किया गया तो वो हंगामा। तो कुल मिलाकर महुआ मोइत्रा केस में अपोजिशन के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर ये आरोप लगाएं कि इसमें तानाशाही की जा रही है, जबकि हकीकत ये है कि वो पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी है जो कि सर्वदलीय है एक तरह से। उसमें सभी दलों का रिप्रेजेंटेशन है, अपोजिशन के भी लोग हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, और उस कमेटी ने साक्ष्यों के आधार पर, पूछताछ के आधार पर महुआ मोइत्रा को उसमें बोलने का मौका दिया, उनसे सवाल जवाब किया गया। ये दिगर बात है कि जब सवाल आते थे तो पलटवार में एक सवाल ही कर देती थी और इतना ज़्यादा और ऐसी ऐसी चीज़ें कहना शुरू कर देती थी कि कमेटी के कई सारे सदस्य असहज हो जाते थे, और जिसका नतीजा ये रहा कि उनको बखूबी मालूम रहा होगा कि ये इस केस में वो बहुत कमज़ोर पिच पर हैं, और उसके चलते इस तरह का तरीका अख्तियार किया जा रहा है ताकि किसी तरह से विपक्ष को इससे क्या हासिल होगा? वो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में, जैसा कि आपने कहा, सर्वदलीय सदस्य थे, तो पहले रिपोर्ट पर चर्चा तो हो जाती, एक मौका और मिलता विपक्ष के सांसदों को इस मुद्दे पर अपनी राय रखने का। हो सकता था महुआ मोइत्रा को भी मौका मिलता इस पर अपनी राय रखने का, लेकिन उससे पहले ही इस तरीके का हंगामा। आप प्लॉट पहले ही हार चुके हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस पे वो कहेंगे क्या, क्योंकि इतने सारे सबूत हैं कि इसमें कहने लायक तो कुछ है नहीं, तर्क वितर्क करने लायक कुछ है नहीं, डिबेट करने लायक कुछ है नहीं। तो वहाँ पर उस स्थिति में अपोजिशन के नेता क्यों जाना चाहेंगे? उनके लिए ज़्यादा आसानी है कि ये तानाशाही का आरोप लगाएं और उसके चलते हंगामा करें और सरकार की छवि पे ये आरोप गढ़ने की कोशिश करें कि ज़बरदस्ती किया जा रहा है। महुआ मोइत्रा की खुद ये कोशिश है कि क्योंकि सरकार के किसी करीबी बिजनेस हाउस पे वो सवाल पूछती हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। पूरा नैरेटिव उन्होंने यही गढ़ने की कोशिश की है, जबकि हकीकत कुछ और है। और उस लिहाज से महुआ मोइत्रा भले ही आज ये हंगामे के चलते आज उस पर चर्चा हो या ना हो, लेकिन समझा जा सकता है कि जब कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश हो गई, उसके बाद जब हाउस विषय को लेगा तो फिर रिजल्ट क्या होने वाला है। अगर विपक्ष की रणनीति भी है तो ये विपक्ष की रणनीति कतई लॉजिकल तो नजर नहीं आती। आज जब महुआ मोइत्रा पार्लियामेंट पहुंची थी तो उससे पहले उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दुर्गा आ गई है, देखेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। माँ दुर्गा आ गई है, देखेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। महाभारत के रण की बात कर रही हैं, वस्त्र हरण की बात कर रही हैं, ये किस तरीके की बातें महुआ मोइत्रा कर रही हैं? और ये कह रही है दुर्गा आ गई है, अपने आप को किसी देवी के साथ तुलना करना, ये वो क्यों कर रही हैं? और क्या वाकई में ये मैसेज लोगों तक पहुंच भी पा रहा है देवेंद्र? क्योंकि उनकी अपनी पार्टी अगर उनके साथ खड़ी नहीं है तो फिर ये मैसेज वो किसे पहुंचा रही है? बिल्कुल मीनाक्षी, और बंगाल में भी देखें तो बंगाल में जिस प्रकार की इस मसले को लेकर वो बयानबाजियां कर रही थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी पॉपुलर सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने पहले भी किया था। और ऐसे मामले में देवी के नाम से जोड़ना, ये सारी चीज़ें मतलब समझ से पड़े है कि महुआ मोइत्रा ये क्यों कर रही हैं। लेकिन ये भी समझा जा सकता है कि वो इतनी कमज़ोर पिच पर हैं कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। सबूत सारे उनके खिलाफ, तथ्य सारे उनके खिलाफ, वो करें तो क्या? और उनके सामने दो ही विकल्प थे, या तो इन सारी चीज़ों को स्वीकार लेती, तो अपोजिशन की सांसद हैं वो जाहिर तौर पर ऐसा नहीं करना चाहेंगी, तो दूसरा रवैया ये था कि सरकार के ऊपर ही आरोप लगाया जाए, सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाया जाए। कमेटी में भी उन्होंने यही किया, आज सदन में भी यही कर रही है। और महाभारत के रण की अगर वो बात कर रही है तो इस रण में वो कम से कम अकेली लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ से एक तस्वीर तो स्पष्ट होती है, क्योंकि टीएमसी के और किसी नेता को आप इस विषय पर आज ना आपने बोलते हुए सुना होगा, ना कल आपने बोलते हुए सुना होगा। डिफेंड करना इस वक्त टीएमसी के लिए महुआ मोइत्रा को वो भी लगभग नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का क्या कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। जब वो पता चलेगा तो ही इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है कि भारत का संविधान इसी तरह की इजाजत देता है मुझे। सर, ऑपोजिशन ये कह रही है कि डिबेट और डिस्कशन के बिना एथिक्स कमेटी के पास कोई राइट नहीं है एक्सपेल करने का, तो एथिक्स कमेटी के राइट की भी उन्होंने बात की है। सर, इसमें थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर आप बताना चाहें तो।
मैंने आपको कहा ना कि डिस्कशन होगा कि नहीं होगा, कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, ये सब तो स्पीकर साहब तय करते हैं ना, रूल यही कहता है। तो स्पीकर साहब क्या करेंगे, वो अभी से एंटीसिपेट कोई कर लिया तो हम उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे। मैंने यही कहा ना, संविधान इसमें बहुत ही क्लियर है, उस लोकसभा में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। इवन पार्टी यदि नाम देगी मेरा बोलने के लिए और स्पीकर साहब की सहमति नहीं होगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। स्पीकर साहब को हमने इतना अधिकार दिया, इसी कारण से ये संविधान चल पा रहा है, लोकसभा चल पा रही है। तो पहले होने दीजिए ना, इसके बाद सब चीजों का जवाब दूंगा मैं। जैसा कि आपने कहा कि अभी सब कुछ स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे या जैसे प्रोसीजर होता है वैसे चलेगा। एक मुहिम आपने शुरू करी सर, एक लड़ाई आप लेके आए, उस पे उसका क्या नतीजा, इसका क्या नतीजा हुआ है ये भी मैं रिपोर्ट पेश होने के बाद ही बता पाऊंगा। तो विपक्ष पर तानाशाही का आरोप लगा देना, विपक्ष का तानाशाही का सरकार पर आरोप लगा देना, सरकार के कैरेक्टर पर, सरकार की रणनीति को लेकर चैलेंज करना, ये जो तरीका है विपक्ष की लड़ाई का, ये बड़ा ही घिसा पिटा, सॉरी टू से, बड़ा ही घिसा पिटा सा साउंड करता है। क्योंकि यहाँ पर मामला एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगे हैं, एथिक्स कमेटी बैठाई गई है, इसमें सभी दलों के नेता इसमें शामिल थे, उसके बाद इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा गया। अब इस पर चर्चा होनी है और चर्चा के बाद जो भी निष्कर्ष होगा वो भी सांसदों के द्वारा ही लिया जाएगा। और फिर ये बात कह देना कि सदन में तानाशाही चल रही है या ये सरकार की तानाशाही है, महुआ मोइत्रा को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये कितना लॉजिकल है? ये विपक्ष को क्या समझ नहीं आ रहा देवेंद्र कि ये बैकफायर करेगा? और महुआ मोइत्रा के केस में देखें तो वाकई आमतौर पे विपक्ष का जो रवैया, जो तस्वीर दिखती है, ये उससे थोड़ा सा उलट है। थोड़ा सा उलट इस लिहाज से कि इसमें उनके अपने दल के सांसद जो कि अपनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, चाहे ममता बनर्जी की बात कर लें बंगाल में, या फिर यहाँ पे डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय, कल्याण बनर्जी, ऐसे कितने सारे नेता हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत लिमिटेड तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स टीएमसी करती है कि आए दिन कहीं धरने पे, प्रदर्शन पे बैठ जाना। आपको याद होगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के सामने पिछले कुछ दिनों पहले ही पिछले सेशन के दरमियान टीएमसी के सारे सांसद वहाँ अचानक पहुँच गए थे, मंत्री नहीं थे, फिर भी उन्होंने हंगामा किया, बाहर धरने पे बैठ रहे हैं। तो ये सारी उनकी पॉलिटिक्स रही है। महुआ मोइत्रा के केस में ऐसा नहीं हो रहा है, वो इस लिहाज से नहीं हो रहा है क्योंकि उनको भी पता है कि तथ्य आपके साथ नहीं है, सबूत आपके साथ नहीं है। महुआ मोइत्रा चाहती है अगर सबूत उनके साथ होता तो कमेटी में उन सारे आरोपों की धज्जियां उड़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि काउंटर में ऐसी ऐसी बातें कहीं जो कि जिसका कोई लेना देना नहीं था, और उनकी कोशिश ये थी कि समिति को असहज कर दिया जाए ताकि ये पूछताछ ना हो। बाद में चेयरमैन ने उनसे कहा भी कि आप यहाँ पर सिर्फ एक सांसद के तौर पर नहीं हैं, आप एक आरोपी के तौर पर अभी यहाँ पे पेश हुई हैं, उस हिसाब से व्यवहार कीजिए। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि महुआ मोइत्रा भले ही कमज़ोर पिच पर हो, क्योंकि उनके पास विकल्प बहुत लिमिटेड हैं, तो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश कर रही हैं और उसके सहारे उनकी कोशिश सबसे ज़्यादा ये रहेगी, क्योंकि सत्र में तो अब बहुत ज़्यादा समय रहना नहीं है जी। पार्लियामेंट के इस मौजूदा सेशन की बात कर लें तो सेशन मतलब सिर्फ यही सेशन नहीं, इसके बाद एक तो नाम मात्र का बजट का छोटा सा हिस्सा रहेगा, तो उसके बाद चुनाव में ही जाना है। तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि इस एपिसोड के सहारे इतना माहौल क्रिएट किया जाए ताकि आगे, बिल्कुल, ताकि ममता बनर्जी फिर से उन्हें चुनाव में लड़ा दें। क्योंकि सोर्सेज ये बताते हैं कि टीएमसी के बहुत सारे नेता ये नहीं चाहते कि महुआ मोइत्रा को दोबारा वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। मैं इसी बिंदु पर फिर आती हूँ, महुआ मोइत्रा को फिर से वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, कई उनके पार्टी के लीडर्स नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए तो फिर ये एक सुनहरा मौका है, एक इजी एग्जिट दिखा सकते हैं वो महुआ मोइत्रा को। बिल्कुल वही मीनाक्षी दिख भी रहा है कि पार्टी के स्टैंड में भी वही दिख रहा है कि भाई अपना केस आप बचाओ। जैसे दिल्ली में टीएमसी के एक सांसद हैं जो कि बहुत मुखर रहते हैं, हर बात पर मुखर रहते हैं, अटैक करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। इस मामले में उन्होंने एक तरह से डिस्टेंस बना रखा है। समझा जा सकता है कि उनकी थिंकिंग क्या रही होगी, क्या वो सोच रहे होंगे, और इस एपिसोड के सहारे महुआ मोइत्रा को लेके जो एक असहजता रहती है पार्टी के भीतर, उसके लिए भी शायद एक एग्जिट वे ही नज़र आ रहा होगा।